हेलो फ्रेंड्स, आई होप ऑल आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। लास्ट क्लास में हम बैंक ऑडिट अप्रोच के बारे में बात कर रहे थे। बेसिकली हमने फर्स्ट सेशन अपना जो स्टार्ट किया था बैंक ऑडिट का स्टार्ट किया था और अब हमारी 2 क्लासेस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी हैं। सेकेंड क्लास जो हमने करी थी उसमें बैंक ऑडिट अप्रोच के बारे में बात किया था, जिसमें आई हैड डिस्कस्ड अबाउट what kind of questions an auditor has to keep in mind when he is beginning an audit of a bank, when he is commencing an audit of a bank, whether it be nationalized bank, whether it be private sector bank, whether it be any cooperative bank or regional rural bank. It does not depend upon the type of which bank is there to be audited for, but it surely depends upon what kind of controls are being used there. Okay, so in that case, an auditor needs to keep in mind some questions. First of all, he needs to focus upon the 5 W's and 1 H. 5 W's are who, what, when, where, why. Who performs the control, what evidence is available, when and with frequency control is performed, where is the evidence of performance of control, why is control being performed. I hope this concept is clear to all of you. Other than 5 W's, we had talked about H. Okay, wherein I explained you that in how question, the question which talks about how, the auditor needs to think how the control is performed, what are the activities, can these activities be bypassed, all these things an auditor needs to keep in mind. Now, after completing bank audit approach, we had discussed about that an auditor along with his team members needs to discuss upon issues. It's important for him to discuss all the matters with his team members, because then only they'll be able to understand how to respond to risk, what kind of assessment they have to carry out at different levels, whether it be assertion level or any other level, what should be the responses to the risk. Okay, other than this, is there any material misstatement involved, then how to bring it to a complete lower level, how to bring that particular misstatement, how to minimize its risk to a lower level. ठीक है, all these things we had discussed. अब इसके बाद हमने क्या देखा था कि बैंक्स में इनकम कैसे रिकॉग्नाइज होती है. It's always advisable for the banks to recognize their income on realization basis rather than on accrual basis. What should be the form and content of financial statements? Financial statements, in case of any bank, includes balance sheet and PL, balance sheet and profit and loss account. The set of statements which is already required in Companies Act. Same applies to banking companies too. And how the audit should be carried out, what should be the eligibility, qualification, disqualification of auditor, appointment of auditor, remuneration and powers of auditor. It is in line with whatever has been explained in the company audit. So what I mean to say is that all these things related to the auditor, its appointment, remuneration, powers, how the audit shall be conducted, all these things, they are similar to what has been explained in company audit. ठीक? Now, today we have to discuss about auditor's report. What are the contents of the auditor's report? Now, in case of a nationalized bank, auditor is required to make a report to the central government. Now, why they are stating central government? Because bank is a large institution. Bank is a large body corporate where millions of people have invested their money, or they have taken the support of the bank in the form of borrowings or lendings. So bank has a major role to play in the society, in the market. Even the demand and supply forces, they fluctuate as per the bank policies, whatever RBI notifies. Now, if I talk about the auditor's report, then in this case, the auditor is very much required to report on what matters.
First of all, like if there is a bank audit, if there is a or if there is the audit of a cooperative society or any other organization, whether it be sole proprietorship, partnership, or any other, the first thing which the auditor needs to report is true and giving the true and fair view of the affairs of that particular organization. Now, in case of bank audit, the auditor needs to provide a true and fair picture. Now, giving a true and fair picture means that whoever is going to study the audit report, he or she shall understand whether to invest in this bank, whether to become a stakeholder in this bank or not. It gives an idea to that particular prospective investor whether he or she wants to get associated with the bank. Sorry, whether he or she wants to get associated with the bank. So he or she gets an idea. So it's the duty of the auditor to present the true and fair view. Even if the auditor finds something fishy, finds something which is like which involves a huge material misstatement, which involves a lot amount of risk, and the auditor feels that the investor's money is at risk, is in danger, because the operations carried out by the bank are not in compliance, bank is violating the norms, then in that case, then the auditor shall be giving a report with a disclaimer, with a condition that though I have audited the accounts, but such and such things I found which could lead to frauds, which could risk the money of the investors. So all these things the auditor needs to report. Basic funda is giving a true and fair view, whether the bank is playing fair or not. Then in the second point, the auditor needs to report whether the transactions, whichever transactions, whether related to ATM, treasury functions, loans, advancement, or accepting deposits from the public, they are in line with the policies of the bank or not. They are in line with whatever RBI prescribes. Whatever returns bank receives from other offices or other branches, they are adequate or not for the purpose of audit. अभी तो इसमें बहुत ही कम चीजें मेंशन्ड है, ये बहुत वाइड स्कोप होता है ऑडिट रिपोर्ट का. जो मैटर, अब देखिए यहाँ पे हर चीज रिपोर्ट नहीं हो सकती है, मतलब एज द केस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि यहाँ पे हम जो पॉइंट्स जितने भी स्टेटेड हैं, इसमें लास्ट में जैसे डी पॉइंट लिखा है, कोई भी मैटर जो ऑडिटर की नोटिस में आता है और उसे लगता है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट को पता चलना चाहिए तो वो रिपोर्ट करेगा. यहाँ पे एनी अदर मैटर क्यों लिखा है? क्योंकि ये लिस्ट इंक्लूसिव नहीं है. दिस लिस्ट इज नॉट इंक्लूसिव. जो इनिशियल के 3 पॉइंट्स हैं वो तो ठीक है, वो ऑडिटर को रिपोर्ट करने ही करने हैं, वो तो बेसिक पॉइंट्स हैं. लेकिन डी पॉइंट ये सिग्निफाई करता है कि बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, हर बैंक टू बैंक वो वेरी करेंगे. There may be different cases, there may be different instances which may vary from bank to bank. In some banks, the operations may go very smoothly. The branch is running in a very finished manner, but in some other, the operations are not running in a proper way. So it depends on branch to branch level, and that is why whatever comes into notice after applying professional skepticism, the auditor needs to report that. Now, what should be the format of the report? If I talk about the format of report, then see what they have mentioned. यहाँ पे ऑडिट रिपोर्ट हम एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं अपने अपकमिंग चैप्टर्स में, उसे ज़रूर कवर करेंगे. उसमें जो फॉर्मेट मेंशन्ड है सेम वही फॉर्मेट होना चाहिए, ठीक है. और उसमें बेसिकली इन लोगों ने किस चीज़ पे फोकस किया है? इन लोगों ने फोकस किया है कि जो भी अनऑडिटेड ब्रांचेस हैं, मान लीजिए बहुत सारी ब्रांचेस ऐसी होती हैं. अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों होता है? सबकी एलिजिबिलिटी होती है, हर एक बैंक की ब्रांच की एलिजिबिलिटी होती है.
कोई ब्रांच ऑडिट के पर्व्यू में आती है, कोई ब्रांच ऑडिट के पर्व्यू में नहीं आती है। अगर एक ब्रांच में ऑडिट की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रही है, उनका एक्सपोजर इतना ज़्यादा है, एडवांसेस का एक्सपोजर बेसिकली इतना ज़्यादा है, तो वो ऑडिट के पर्व्यू में आ जाती हैं। अभी ये चीज़ भी हम कवर करेंगे कि कौन कौन सी ब्रांचेस को बेसिकली ऑडिट की रिक्वायरमेंट होती है, तो उन्हें तो ऑडिट कराना ही है, लेकिन बहुत सी ब्रांचेस ऐसी हैं जिन्हें ऑडिट नहीं कराना पड़ता है, क्योंकि वो बहुत बड़ी अगर मैं लेमैन लैंग्वेज में बोलूँ तो वो बहुत बड़ी ब्रांच नहीं होती है। तो यहाँ पे बेसिकली ये कह रहे हैं कि ऑडिट रिपोर्ट जो चैप्टर है उसके हिसाब से ही फॉर्मेट होना चाहिए, बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, हम लोग ज़रूर कवर करेंगे। अभी नेक्स्ट टॉपिक ऑडिट रिपोर्ट ही हम कवर करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम ऑडिट ऑफ डिफरेंट एंटिटीज़ भी कवर करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे स्ट्रेस ये दिया जा रहा है कि ऑडिटर को ये तो बताना ही कि अनऑडिटेड ब्रांचेस कौन कौन सी हैं, लेकिन साथ में ये भी बताना है एडवांसेस कितने कितने हैं, डिपॉजिट्स कितने हैं, इंटरेस्ट इनकम कितनी हो रही है, इंटरेस्ट एक्सपेंस कितने हो रहे हैं अनऑडिटेड ब्रांचेस के, और क्या ये ऑडिट रिपोर्ट में डिस्क्लोज हुए हैं कि नहीं। देखिए होता क्या है, जब रीजनल ऑफिस लेवल पे ऑडिट होता है तो रीजनल ऑफिस लेवल के ऑडिट के टाइम पे जितने भी सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एसबीआई का सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर, और कोई XYZN कंपनी को मिला है, कोई असाइन हुआ है ऑडिट एसबीआई का। अब एसबीआई का ऑडिट असाइन हुआ है, किस सिटी का असाइन हुआ है, किस सिटी का हुआ है, फॉर एग्जांपल इंदौर का हुआ है, ठीक है। तो इंदौर में जो मेन ब्रांच होगी एसबीआई की, वहां का वो ऑडिट कैरी आउट करेंगे। साथ में ये देखेंगे कि एसबीआई की जितनी भी ब्रांचेस हैं इंदौर में, उसमें से अनऑडिटेड कितनी है, अनऑडिटेड की सारी इंफॉर्मेशन उस रिपोर्ट में देंगे। उनसे कांटेक्ट करेंगे, कहेंगे आप अपने एडवांसेस बताइए, डिपॉजिट्स बताइए, आपकी इंटरेस्ट इनकम क्या है, एक्सपेंस क्या है। सिर्फ ये सब काम क्यों हो रहा है, सिर्फ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है ये, ठीक है। ऑडिट नहीं करना है, सिर्फ डिस्क्लोज करना है ऑडिट रिपोर्ट में, ताकि जो भी यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, क्योंकि देखिए आजकल के लोग बहुत ज्यादा अवेयर हो गए हैं। कोई भी पर्सन स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करता है तो ही और शी स्टडीज, एनालाइजेस द कंपनी, इट्स फाइनेंशियल्स, इट्स रिपोर्ट्स, इट्स कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन for at least 3 to 4 times, then only he or she invests. And रही बात बैंक की, बैंक में इन्वेस्ट करना है, बैंक से जुड़ना है, तो आजकल के इन्वेस्टर्स, आजकल के कस्टमर्स, आजकल की पब्लिक बहुत ज़्यादा माइंडेड हो गई है, ओपन माइंडेड हो गई है। तो बिफोर इन्वेस्टिंग, बिफोर टेकिंग एनी एक्शन, बिफोर गेटिंग एसोसिएटेड विद एनी बैंक, दे जस्ट गूगल इट, देखते हैं कि क्या है, क्या कैसी बैंक है, अच्छा इसमें, और कंपेयर करते हैं। दे कंपेयर, लोन भी लेना होता है तो दे कंपेयर विद अदर बैंक्स कि मुझे इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट किस में रीजनेबल मिलेगा, प्रोसेसिंग फीस किस में सबसे कम लगेगी, फिर सर्विसेज किस में ज़्यादा मिलेंगी, फॉर्मेलिटीज मिनिमम से मिनिमम कितनी होंगी। कस्टमर्स लुक आफ्टर दीज थिंग्स, वो देखते हैं, एनालाइज करते हैं, पूरी रिसर्च करते हैं। और इसके अलावा क्या देखते हैं, वो देखते हैं कि हम इस बैंक में अपना अकाउंट ओपन कर रहे हैं, एफडी करवा रहे हैं, तो एफडी का इंटरेस्ट रेट भी दे मैच विद अदर बैंक्स, कि यहाँ सही रहेगा कि यहाँ सही रहेगा। तो ये सब चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं आजकल के टाइम पे। और बहुत सारे लोग, देखिए जितने भी बैंक्स हैं, अब बहुत सारे लोग जितने भी, क्योंकि आजकल लोग बहुत अवेयर हो गए हैं, तो वो रिलाई करते हैं ऑडिटर के ऊपर। जब किसी ब्रांच का ऑडिट होता है और ब्रांच लेवल पे बहुत सारे फ्रॉड डिटेक्ट होते हैं, तो उस ब्रांच की वजह से उस बैंक की रेपुटेशन खराब होती है। बैंक की रेपुटेशन खराब होती है तो जितने कस्टमर्स जुड़े हुए होते हैं उनके मन में तो डर हो जाता है कि अब मेरा बैंक, इस बैंक में तो मेरा पैसा फंस गया, यहाँ तो ये स्कैंडल्स हो रहे हैं। उससे जितने भी प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स होते हैं ना, वो डर जाते हैं, वो फिर पैसा लगाने से भागते हैं, और इसकी वजह से बैंक अपने कस्टमर्स लूज करता है।
क्यों लूज़ करता है? क्योंकि जितने भी लोग हैं आजकल वो रिलाय करते हैं, वो पूरी इन्फो लेते हैं, एनालाइज़ करते हैं ट्रेंड सारे, ऑडिट रिपोर्ट पढ़ते हैं, उसके बाद इन्वेस्ट करते हैं बैंक में। बैंक हो या किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना हो, व्हाटएवर द केस में भी। तो ये एक जनरल बात है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि अनऑडिटेड अगर ब्रांचेस भी होंगी ना, तो उनकी इंफॉर्मेशन भी पूरी डिस्क्लोज होगी, क्योंकि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जितने भी यूजर्स होते हैं उन्हें हेल्प मिलती है, जो पढ़ते हैं पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब रही बात लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट की, तो ऑडिट रिपोर्ट के अलावा एक स्टैट्यूटरी ऑडिट में रिक्वायरमेंट होती है। स्टैट्यूटरी ऑडिट जो होता है बैंक का, उसमें रिक्वायरमेंट होती है लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट की। एक ऑडिट रिपोर्ट जो ऑडिटर की होती है, जिसमें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और बहुत सारी चीज़ें स्टेटेड होती हैं, वो तो रहेगी, साथ में लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट भी अटैच होगी। एक तरह से चेकलिस्ट के फॉर्मेट में भी होती है वो। और उसकी रिक्वायरमेंट कहाँ कहाँ होती है? पब्लिक सेक्टर बैंक हो, प्राइवेट सेक्टर बैंक हो, फॉरेन बैंक हो, LFAR की रिक्वायरमेंट हर बैंक में होती ही होती है। तो LFAR की एक ड्यू डेट होती है सबमिट करने की। हर साल की 30 जून से पहले पहले LFAR सबमिट करनी होती है। और इसमें जो है प्रॉपर प्लानिंग ज़रूरी होती है। इसका कोई फॉर्मेट ये नहीं होती है कि बहुत कुछ डिटेल्ड कोई इन्फॉर्मेशन देनी है या क्या देना है क्या नहीं देना है, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन LFAR 30 जून से पहले पहले सबमिट करनी होती है, ये इसकी डेडलाइन होती है। और तभी जितने भी स्टैट्यूटरी बैंक ऑडिट्स होते हैं वो अप्रैल में कमेंस हो जाते हैं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े स्केल पे जैसे बहुत बड़ी ब्रांचेस हैं या सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिट है, तो उस केस में ब्रांच टू ब्रांच लेवल भी बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस लग जाता है पूरा ऑडिट कंप्लीट करने में। इसलिए अप्रैल में ऑडिट स्टार्ट हो जाते हैं और वो खत्म होते होते जून तक फिर रिपोर्ट भी फाइनल करनी होती है। और इसके अलावा RBI को रिपोर्टिंग तो खैर होगी होगी, ठीक है। तो RBI एक सर्कुलर इशू करता है relating to implementation of recommendation of committee on legal aspects of bank frauds applicable to all scheduled commercial banks excluding regional rural banks। अब इसमें regional rural banks covered नहीं है, जो rural areas में जितने भी बैंक होते हैं वो covered नहीं है। यहाँ पे basically RBI क्या चाहता है? RBI चाहता है बैंक फ्रॉड से रिलेटेड जो भी कमिटी के लीगल एस्पेक्ट्स हैं वो फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो इस केस को लेके RBI ने एक सर्कुलर बनाया। अकाउंटिंग की लाइबिलिटी, ऑडिटिंग के प्रोफेशन, तो सर्कुलर में क्या स्टेटेड है वो यहाँ मेंशन्ड है बोल्ड लेटर्स में। If an accounting professional, whether in course of internal, external audit or in the process of institutional audit, finds anything susceptible to be fraud or fraudulent, or act of excess power or smell any foul play in the transaction, he should refer the matter to the regulator। साफ साफ देखिए लिखा हुआ है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा है। ये लिखा हुआ है कि अगर किसी ऑडिटर को, लेमन लैंग्वेज में CA को, इंटरनल ऑडिट कर रहा हो या एक्सटर्नल ऑडिट कर रहा हो, एक्सटर्नल ऑडिट में जैसे स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो गया, इंटरनल ऑडिट मतलब विद इन द ब्रांच लेवल मैनेजमेंट में ही कोई अपॉइंट होता है ऑडिट करने के लिए, या कॉन्करेंट ऑडिटर्स भी होते हैं, वो भी हम आगे अभी देखेंगे। ऑडिटर को कोई भी चीज़ गलत नज़र आती है, फ्रॉडलेंट लगती है, तो उसे तुरंत रिपोर्टिंग किसे करनी चाहिए? रेगुलेटर को। रेगुलेटर कौन है? RBI। बैंक का रेगुलेटर है RBI। और अगर ऑडिटर ने रिपोर्ट नहीं किया, बाद में बैंक में वो सारे फ्रॉड्स बाद में रिवील होके आ रहे हैं, एकदम से सामने आ रहे हैं स्कैंडल्स, तो उसमें ऑडिटर ही लायबल होगा, उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। यहाँ पे एक ऐसे और फॉलो होता है, कंसिडरेशन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस इन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, SA 250, जो कि कहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिट में जितने भी लॉज और रेगुलेशंस उससे जुड़े हुए हैं, लीगल कंप्लाइंसेस जुड़े हुए हैं, वो फुलफिल करना ज़रूरी होता है। जो ये कहता है ड्यूटी ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी इज ओवर रिटन बाय स्टैट्यूट, लॉ और कोर्ट्स, ठीक है। यानी कि जैसे जितने भी
कोई भी सेक्शंस, कोई एक्ट एप्लीकेबल हो रहा है किसी पर्टिकुलर कंपनी में, कोई ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो फॉलो होना चाहिए, कंप्लायंसेस प्रॉपर होने चाहिए, ठीक। उसके अलावा ऐसे 240 है जो फ्रॉड के बारे में बात करता है। एक तो आपने ऐसे 315, 330 भी बताया था मैंने आपको, लेकिन 240 ये बोलता है कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है फ्रॉड को लेके। कोई भी ऑडिटर अगर ऑडिट कंडक्ट कर रहा है ऐसे के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि वो चेक करे कि वो पर्टिकुलर एरियाज जो वो देख रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख रहा है, वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट से फ्री है, मटेरियल डिस्क्रिपेंसी से, सिग्निफिकेंट जितने भी मिसस्टेटमेंट्स हैं उनसे फ्री होना चाहिए, चाहे वो फ्रॉड से कॉज हो रहे हों या एरर से कॉज हो रहे हों। तो हर एक ट्रांजैक्शन ऑडिटर नहीं देख पाता है, पॉसिबल ही नहीं होता है। लेकिन अगर ड्यूटी परफॉर्म करते टाइम उसे कोई ऐसा इंस्टेंस नज़र आ जाता है तो उसे तुरंत आरबीआई को रिपोर्ट करना चाहिए, साथ में जो भी बैंक का मैनेजिंग डायरेक्टर है या चेयरमैन है उससे भी रिपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ऐसे फ्रॉडलेंट केसेस में रिपोर्टिंग ऑडिटर की बहुत ही एक वेपन की तरह सिद्ध होती है, बेसिकली कहा जाए तो एक वेपन, बहुत बड़े जैसे शस्त्र बोलते हैं ना, वेपन की तरह सिद्ध होती है, इसलिए बोला गया है, इसलिए ऑडिटर को इतनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है। ऑडिटर का इतना बड़ा रोल होता है किसी भी ऑडिट में, वो चाहे तो किसी बैंक की सच्चाइयां सामने ले आए और वो बैंक बंद हो जाए, ठीक है, ये भी कर सकता है। ऑडिटर के पास पूरे पावर्स होते हैं हर एक फ्रॉड को सामने लाने के। अब यहाँ पे और क्या बात लिखी हुई है, अगर ऑडिटर को परफॉर्मेंस के टाइम पे ऐसा लगता है कि फ्रॉड इन्वॉल्व है, कोई अमाउंट इन्वॉल्व है जो कि फ्रॉड से रिलेटेड है, फ्रॉड पूरी पूरी तरह से कमिट हो रहा है, कंपनी में ऑफिसर्स कर रहे हैं, उसके एम्प्लॉयज कर रहे हैं, तो ये मैटर सेंट्रल गवर्नमेंट को भी बताए, ये मैटर सेंट्रल गवर्नमेंट को भी बताए। लेकिन सबसे पहले देखिए वहाँ ब्रांच लेवल पे डिस्कशन करना होगा ऑडिटर को, ब्रांच मैनेजर से बात करनी होगी, वो नहीं समझेगा तब वो हेड ऑफिस लेवल पे जाएगा, हेड ऑफिस लेवल पे भी अगर वो क्लैरिफाई नहीं हो पाएगा तब फिर वो आरबीआई, फिर चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ बैंक से कंप्लेन होगी, ठीक। अब रही बात कंडक्टिंग एन ऑडिट, क्या स्टेजेस इन्वॉल्व होती हैं ऑडिट करते टाइम। स्टैट्यूटरी ऑडिटर की देखिए बात हो रही है, क्योंकि स्टैट्यूटरी ऑडिटर एक्सटर्नल ऑडिट होता है, एक्सटर्नल ऑडिटर करता है परफॉर्म। तो सबसे पहले जो स्टेज आती है उसमें देखिए ऑडिटर अपॉइंट होने से पहले ही आरबीआई ने एडवाइस किया है कि बैंक्स को एक इंडेटनेस का डिक्लेरेशन देना होगा, डिक्लेरेशन लेना होगा, शुड ऑब्टेन अ डिक्लेरेशन ऑफ इंडेटनेस, ठीक है। अब इंडेटनेस से क्या पता चलेगा, उस बैंक ने कोई लोन तो नहीं लिए हुए हैं, उस बैंक ने एडवांसेस तो बैंक देता ही है, लेंडिंग ऑपरेशंस करता ही है बैंक, लेकिन उस बैंक ने अगर कोई लोन ले रखे हैं बैंक के ही नाम पे, ऐसा तो नहीं है कोई केस। फिर इंटरनल असाइनमेंट्स देखना, आरबीआई ने डिसाइड किया है कि ऑडिट फर्म्स जितनी भी होंगी वो अगर इंटरनल असाइनमेंट्स में एसोसिएटेड है तो वो स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं करेंगी। समझ आया आपको ये बात। बेसिकली अगर कोई ऑडिटर अपॉइंट हुआ है इंटरनल ऑडिट कैरी आउट करने के लिए उस ब्रांच का, बैंक की ब्रांच का, वही सेम ऑडिटर स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं कर सकता है सेम ईयर में। समझ रहे हैं आप लोग। इंटरनल ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट एक ही ऑडिट फर्म या एक ही ऑडिटर नहीं कर सकता है उसी ईयर। थर्ड पॉइंट ये कहता है प्लानिंग, ऐसे 300 प्लानिंग करना हर स्टेज पे देखिए ज़रूरी है, इनिशियल लेवल पे तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो अगर प्लानिंग की हम बात करें, इसमें सबसे पहले तो ये पॉइंट्स हो गए आपके। इंडेटनेस, इसमें कीवर्ड्स की बात करूं तो इंडेटनेस, इंटरनल असाइनमेंट, स्टैट्यूटरी ऑडिटर, फिर प्लानिंग। तो प्लानिंग की बात करें तो प्लानिंग में कैसे होना चाहिए, ऐसे 220 के अकॉर्डिंग होना चाहिए एंड ऐसे 210 के अकॉर्डिंग होना चाहिए।
क्या है इसे 220 210 क्वालिटी कंट्रोल होना चाहिए। क्वालिटी कंट्रोल अपनी एंगेजमेंट टीम के मेंबर्स के साथ डिस्कस करो, ऑडिट कैसे कैरी आउट करना है, कैसे कैसे किस किस डिपार्टमेंट को ज़्यादा फोकस करना है, किस एरिया पे ज़्यादा फ्रॉड के चांसेस हैं, ये डिस्कशन करना होगा टीम मेंबर्स के साथ, उस हिसाब से उन्हें वर्क डेलीगेट होगा। दिस ऑल दीज थिंग्स दे फॉर्म पार्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। फिर ऑडिट एंगेजमेंट के टर्म्स को अग्री करना, अंडरस्टैंड करना टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, क्योंकि एंगेजमेंट लेटर मिलता है उसमें टर्म्स लिखे रहते हैं, उसको देखना पढ़ना और अग्री करना, ऐसे 210। फिर प्रीवियस ऑडिटर से कम्युनिकेट करना। कोई भी नया ऑडिटर अगर कोई बैंक का अपॉइंट हुआ है तो वो पोजीशन तब तक एक्सेप्ट नहीं करेगा तब जब तक उसे प्रीवियस ऑडिटर से एनओसी ना मिल गई हो। एनओसी क्या होती है? नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। उसे प्रीवियस ऑडिटर से जब एनओसी मिलेगी तभी वो ये ऑडिट एक्सेप्ट कर पाएगा। एनओसी एक तरह का बेसिकली डॉक्यूमेंट दिया जाता है प्रीवियस ऑडिटर से कि हम ये ऑडिट कर रहे हैं, हमें ये ऑडिट मिला है, और परमिशन एक तरह से ली जाती है कि हम ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, और परमिशन भी एक तरह से होती है, इसके साथ साथ इंटीमेशन भी होता है। ये एक तरह का कम्युनिकेशन होता है प्रीवियस ऑडिटर को कि हमने ये ऑडिट एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक, अब इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं देखिए, क्योंकि ये हम अभी स्टेजेस पढ़ रहे हैं, स्टेजेस बहुत सारी हैं इसमें। अभी तो हमने फर्स्ट पॉइंट भी स्टार्ट किया है, पूरा कंप्लीट करना है फर्स्ट पॉइंट भी, तो हम ये सारी चीज़ें ग्रेजुअली देखते चलेंगे। ठीक है, अभी इसमें ये बैंक ऑडिट वाला जो चैप्टर है ना, ये बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हम आगे कवर भी करने वाले हैं, बट आराम आराम से, क्योंकि एक बार में अगर सब वही दिक्कत होगी कवर होगा तो उसमें आपको प्रॉब्लम होगी सारा समराइज करने में। ठीक, तो आज की क्लास हम यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे और डिस्कस करेंगे। साथ में हम अपना अब एक और टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि आप सबकी डिमांड आई है ऑडिट ऑफ डिफरेंट एंटिटीज करके, उसकी क्लासेस भी साथ साथ आपको देखने को मिलेंगी बैंक ऑडिट के साथ साथ। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे और कवर करेंगे।